Hello everyone. This lecture series is brought to you by Raj Malhotra's IAS Institute, Chandigarh. ये लेक्चर सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 ईयर या 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. This is Ayush Gupta and I am going to cover up the legal aptitude section of this entrance exam for all of you. In our today's lecture, we are going to talk about the important constitutional amendments. Although till date there have been about 104 constitutional amendments, however, we don't really need to know about all of them. We are going to study only those amendments that are important with respect to the examination. Every year, about one question is approximately asked directly from the amendments. So, before we begin with the lecture, we also need to understand one thing, that an amendment to the Constitution may generally affect a number of articles of the Constitution. However, we are not supposed to see, with respect to the examination, all the things that that amendment has touched. We'll just be looking at the important aspects of those amendments. So, let's begin with our today's lecture. So, first we have the first Constitutional Amendment Act of 1951. So, the Constitution came into complete force on 26th of January 1950. However, within 1 year of its coming into force, the constitutional makers who had framed that very constitution and who were now lawmakers now felt the need to amend that very constitution. This was a very big deal at that point in time. But why was this constitutional amendment necessary? At the time of independence, peasants formed a very important support group for the freedom fighters. Again, peasants were the most exploited class at the time of the British rule. So, it was felt that there was need to bring in land reforms and a division of land, redistribution of land was necessary. However, the constitution had provided at that point in time right to property in its fundamental rights. Therefore, when a number of governments, state governments, bought land reform acts, those acts were struck down by the courts at that point in time by citing the fundamental right of right to property given under part 3 of the Constitution. Therefore, a way out was thought by bringing in first Constitutional Amendment Act of 1951, which added 9th schedule to the Constitution. So, what was this 9th schedule? Basically, 9th schedule provided for those laws which were to be kept out of judicial review. This very schedule was made so as to put in the schedule all those laws with respect to land reforms and other laws which were required to be kept out of judicial review. Keeping them out of judicial review meant that judiciary फिर इन laws को analyze नहीं कर सकती थी and इनके ऊपर ruling नहीं दे सकती थी on the basis of the constitution, on the basis of their constitutionality. So, in this very manner, while keeping intact the right to property in fundamental rights, an exception was carved out in the manner of 9th schedule. Although this very schedule was added as an exception and it was thought at that point in time that this will be used only for to bringing land reform laws, and with the first amendment about 13 laws were added to this schedule. However, with time this exception became a norm, and before Keshwananda Bharati there were about more than 250 laws in 9th schedule. After Keshwananda Bharati, the position changed a bit and it was held thereafter that now judicial review would also be possible of the laws which would then be added, thereafter Keshwananda Bharati would be added to the 9th schedule, and now all the laws would not be immune. So, till that judgment came, more than 250 laws were already added to the 9th schedule. Moving forward, the 7th Constitutional Amendment Act of 1956. At the time of independence, the Indian states were divided into 4 parts. They were classified into 4 categories, which were Part A states, Part B states, Part C states and Part D states.
This was on the basis of whether they were a British province at that point in time, whether they were some princely states, or whether they were supposed to be made as a union territory, or whatsoever the reasons might have been. So thereafter these states were reorganized and they were carved out of into 14 states and 6 union territories in the beginning. So this necessitated an amendment to Schedule 1 of the Constitution and Part 1 of the Constitution, which enumerates union and its territories, and therefore in order to effect this reorganization of all the states, 7th Constitutional Amendment Act of 1956 was brought. 7th Constitutional Amendment Act 1956 ने ये जो पहले क्लासिफाइड हो रखी थी स्टेट्स, इनकी इन क्लासिफिकेशन को खत्म करके स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया, उनकी बाउंड्रीज फिर से ड्रॉ करी और पूरे देश को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में बांटा। एंड इसके बारे में अमेंडमेंट करी गई शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960 1958 के अंदर इंडो पाक एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि बेरूबारी यूनियन, जो कि उस टाइम पे स्टेट ऑफ बंगाल का पार्ट होती थी इंडिया के, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन खड़ा किया था विद रिस्पेक्ट टू सम बाउंड्री डिस्प्यूट, उसे इंडिया उस टेरिटरी का आधा हिस्सा पाकिस्तान को देगा। दिस वाज एग्रीड बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज। सो अ क्वेश्चन वाज पुट टू द सुप्रीम कोर्ट दैट वेदर गवर्नमेंट कैन डू दिस विदाउट ब्रिंगिंग इन एनी लॉ और नॉट, कि हम अपने आप एग्रीमेंट करके क्या हम अपनी टेरिटरी दे सकते हैं, या हमें इसके लिए कोई स्पेशल लॉ लाना पड़ेगा या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। सो बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960 के अंदर यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आपको यदि देश की कोई टेरिटरी सिसीड करनी है, टेरिटरी किसी और देश को देनी है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आर्टिकल 1 के अंदर, जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बताता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट to this Indo-Pak agreement and to secede territory of Berubari Union, this constitutional amendment was brought in. That is 9th Constitutional Amendment Act of 1960. Then we have the 24th Constitutional Amendment Act of 1951. It affirmed the power of the Parliament to amend any part of the Constitution, including fundamental rights. Also, it made compulsory for the President to give his assent to Constitutional Amendment Bill. So basically, इस amendment ने ये clarify कर दिया कि Parliament के पास power होएगी amend करने की any part of the Constitution, including fundamental rights. Secondly, President, as we all know, दैट कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट पास करती है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, उनकी मंजूरी के लिए, एंड उसी के बाद वो बिल लागू हो सकता है। देयरफॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेड दैट इन केस वी ब्रिंग द पार्लियामेंट ब्रिंग्स इन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड दैट बिल हैज सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, President cannot exercise any of his veto powers. No veto powers can be exercised with respect to a constitutional bill by the president, and president has to mandatorily give his assent to that very bill. So president के पास जैसे हम जानते हैं कि एक पॉकेट वीटो होती है और एक वीटो होती है कि वो असेंबली के पास, पार्लियामेंट के पास वापस भेज सकते हैं उस बिल को रिकंसिडर करने के लिए। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट ये पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उन्हें मैंडेटरीली इस बिल को एक्सेप्ट करना होगा। सो दिस वाज हेल्ड इन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 26th Constitutional Amendment Act 1971. At the time of independence, there were a number of princely states also. So Britishers had given by Indian Independence Act those princely states the independence to decide whether उन्हें पाकिस्तान के साथ जाना है या उन्हें इंडिया के साथ जाना है। So roughly more than 500 states decided to come with India, जिसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के अंदर और पार्लियामेंट और उस टाइम के लीडर्स के साथ ये एग्रीमेंट किया गया उन रूलर्स के साथ कि उन्हें हमारी सरकार, द इंडियन गवर्नमेंट विल पे देम प्रिवी पर्सेस एंड दे विल बी गिवन सर्टेन प्रिविलेजेस। Who will be given? The rulers of these former princely states. प्रिवी पर्सेस आप समझ लीजिए एक तरीके की पेंशन है जो कि सरकार इन्हें हर साल देगी।
क्योंकि इन्होंने दे हैव लॉस्ट देयर टेरिटरीज, दे हैव लॉस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड सर्टेन प्रिविलेजेस विल आल्सो बी गिवन टू देम। प्रिविलेजेस यानी ऐसी फैसिलिटीज जो कि इन्हें नॉर्मल लोगों से अलग रखेंगी। सो बाय 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये कह दिया गया कि अब कोई भी प्रिवी पर्सेस नहीं दिए जाएंगे और सारे प्रिविलेजेस जो इनके लिए हमें पहले रखे थे वो खत्म कर दिए जाएंगे। ये ऐसे इसलिए किया गया कि बिकॉज गवर्नमेंट को बाद में तब रियलाइज होता है कि अब गवर्नमेंट राइट टू इक्वालिटी को नहीं वायलेट करना चाहती एंड इन लोगों को भी द फॉर्मर रूलर्स ऑफ स्टेट्स वुड बी ऑल्सो इक्वल सिटीजंस इन इंडिया एंड दे विल नॉट बी गिवन एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, which is why this Constitutional Amendment Act was brought in. Then we have the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. This is perhaps the most important of all constitutional amendments and therefore it is also known as mini constitution. इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसने लगभग हर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टच किया एंड काफी सारी चीजें चेंज करी। हाउएवर हम इसमें से सिर्फ 4 चीजों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 इज प्रियम्बल। प्रियम्बल को अमेंड करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने प्रियम्बल में 3 शब्दों को डाला, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये 3 शब्द शुरुआत में प्रियम्बल में नहीं थे, इन 1976 बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाले गए। देन इट एडेड द पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन which talks about fundamental duties. Fundamental duties भी पहले नहीं थी, बाद में आई इस constitutional amendment के द्वारा। Then it made president bound by the advice of cabinet. In a parliamentary system, by convention, president has to abide by the advice of the cabinet. However, this was not expressly stated in the constitution. Therefore, to remove any sort of confusion that the president can also take any independent view with respect to any decision, ये amendment करके इसमें डाला गया कि president is now always bound by the advice of cabinet. president का हर action cabinet की सहमति से ही होएगा और president की हर power will be exercised by the satisfaction on advice of cabinet. Then it made constitutional amendment beyond judicial scrutiny. ये बहुत ही एक important चीज है। So इस एक्ट ने ये कहा कि हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएंगे, पहले हमें याद है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। नाउ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेज दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वुड बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को नहीं परख सकती, ये इसने रख दिया। विच मीन्स एक जो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस था कि जुडिशरी चेक करती थी लेजिस्लेचर की और एग्जीक्यूटिव की पावर, उसे यहां पे एक तरीके से खत्म कर जा रहा था। लेकिन देन वी हैड द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट ने जहां पे सबसे पहले जो काफी सारे ऐसे प्रोविजंस 42 द्वारा किए गए, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा किए गए, जिसके तहत जुडिशरी की कई पावर्स ले ली गई और सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी ताकतवर बना दिया गया। पहले तो इसने उन प्रोविजंस को खत्म किया। सेकेंडली, द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट दिस एक्ट डिड आर, नंबर 1, it replaced internal disturbance term by armed rebellion in respect of national emergency. So 1975 के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी जी imposed national emergency in the country. On what grounds? Basically national emergency के चैप्टर के अंदर जो ग्राउंड्स दे रखे हैं उनमें से एक ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो इट वाज सेड बाय द गवर्नमेंट कि देश के अंदर काफी इंटरनल डिस्टर्बेंस है, लॉ एंड ऑर्डर तरीके से नहीं चल पा रहा, इसलिए नेशनल इमरजेंसी इंपोज करी जाएगी। नाउ दिस टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस इज वेरी वेग टर्म, इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी मैनर and any situation can be said to be causing internal disturbance. So in order to avoid such a situation in future, internal disturbance के ground को national emergency लगाने के लिए हटाकर चेंज करा गया armed rebellion से। armed rebellion का मतलब बगावत, यदि देश में बगावत हो जाए, वो भी हथियारों के साथ अगर बगावत हुए, तब ही देश में national emergency लगाई जा सकती है इस ग्राउंड पे।
Then it made the president to declare national emergency only on written recommendation of cabinet. So 1975 में क्या हुआ था, श्री इंदिरा गांधी जी ने, जो कि देश की तब प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने प्रेसिडेंट को रेकमेंड किया कि आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए। उनकी खुद की कैबिनेट को भी ये नहीं पता था कि देश के अंदर इमरजेंसी लग रही है। So in order to restore and in order to see that this system of imposing national emergency is not completely arbitrary, it was made a point in the constitution that now अगर president को national emergency declare करनी है, so he needs to obtain written recommendation of the cabinet and not just the prime minister. Written के अंदर पूरी cabinet देगी recommendation and तभी president can declare national emergency. Thirdly, it provided that fundamental rights given by Article 20 and 21 cannot be suspended during national emergency. अब national emergency से हम इतना डरते क्यों हैं, कारण क्या है? उसका कारण ये है कि national emergency के टाइम पे जब national emergency impose होती है, Article 19 तो ऑलरेडी अपने आप ही सस्पेंड हो जाता है। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल ये कहता है कि प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन किसी भी और फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड कर सकता है। सो अगर आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सस्पेंड हो जाए, दैट मीन्स कोई आपको जेल में डाल देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड क्या पता दे माइट बी किलिंग्स ऑफ द पीपल ऑल्सो। सो देयरफॉर इट सेज दैट whenever national emergency is imposed, the fundamental rights enshrined under Article 20 and 21, they cannot be taken from you. Do anything else, do take other rights, but under Article 20 and 21, which are most essential for our personal life and liberty, these rights cannot be taken away. These rights do not get suspended at the time of national emergency. This was added in the Constitution by this Constitutional Amendment Act, which is the Constitutional Amendment Act, 44th Constitutional Amendment Act. Then we have the 52nd Constitutional Amendment Act, 1985. It is also popularly known as the Anti-Defection Law. So it provided for disqualification of members of parliament and state legislature on grounds of defection, added 10th schedule containing the details in this regard. So डिफेक्शन क्या होता है, जब पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जब भी सरकारें बननी होती हैं और एक टाइट रेस होती है इन ऑर्डर टू अटेन द मेजॉरिटी, सो मोस्टली हम ये देखते हैं कि एक एमएलए या एमपी जीत के किसी और पार्टी की टिकट पे आता है एंड बाद में ही स्विचेस डाउन टू अनदर पार्टी। एंड बेसिकली इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कायम नहीं रहती है, गवर्नमेंट्स कभी भी गिरने का डर लगा रहता है। एमएलएज एंड एमपीज ये जनरली किसी ना किसी पोजीशन के लालच में कर लेते हैं, या कई बारी बहुत बारी हॉर्स ट्रेडिंग का भी एग्जाम लगा है, पैसे का देन लेन के भी एग्जाम लगते रहते हैं। सो in order to stop this and in order to prevent this and in order to restore stability of government formation process, anti defection law लाया गया, जिसके तहत यदि अगर कोई मेंबर ऑफ वन पार्टी जो कि जीत के आया एक पार्टी की टिकट पे, चाहे लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर स्टेट के अंदर, स्टेट असेंबलीज के अंदर, यदि वो दूसरी पार्टी को स्विच कर जाता है तो उसे ऑल टुगेदर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है असेंबली से। अगर आप किसी को असेंबली से डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो वो मिनिस्टर बनेंगे कैसे? सो दिस इज वाई ये एक सेफगार्ड अप्लाई कर देता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिफेक्शन, ऑल्दो इसके बाद भी डिफेक्शन आज भी होती हैं, लेकिन सो दिस वेरी एक्ट वाज बॉट इन सो एज टू प्रोवाइड फॉर मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस थिंग। शेड्यूल 10 ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि सारे इस एक्ट के अंदर जो डिटेल्स हैं वो इन्यूमरेट करता है। सो by 52nd Constitutional Amendment Act, Schedule 10 was added to the Constitution. By first Constitutional Act, हमने पढ़ा था 9th Schedule was added to the Constitution. Moving forward, 61st Constitutional Amendment Act, 1989. यह एक्ट लाया गया था श्री राजीव गांधी जी के टाइम पे जब वे प्राइम मिनिस्टर थे। It reduced the voting age of 21 years to 18 years for Lok Sabha and state legislative assemblies. So इससे पहले तक बिफोर 1989
आपको यदि इलेक्शंस में वोट करना था तो आपको 21 साल की उम्र का होना ज़रूरी था। हाउएवर विद दिस एक्ट वोटिंग एज डाउन लेके आई गई 18 ईयर्स पे। टुडे वी at the age of 18 can participate in the election process of MPs, Sansads and MLAs. So this was done to have youth participate more in the electoral process of the country. 73rd Constitutional Amendment Act 1992. It granted constitutional status and protection to Panchayati Raj institutions and added 11th schedule to the constitution. 11th schedule लेके आया 73rd Amendment Act. So गांधी जी का सपना था कि हम सेल्फ सस्टेनिंग विलेजेस बनाएं, विलेजेस अपने डिसीजंस, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर पाएं, एंड तभी ग्राम स्वराज्य आएगा, एंड इसी से पूरे देश में स्वराज्य आएगा। स्वराज्य यानी अपने आप को रूल करेंगे लोग। सो ये लागू करने के लिए उनके जो पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाने के सोचा था, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायत को देश के अंदर बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, और 11th शेड्यूल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इवन 11th शेड्यूल में वो सारे सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं जिसके ऊपर पंचायत रूल बनाएगी, वो सारे तरीके लिखे गए हैं जिसके थ्रू पंचायत अपने रेवेन्यू भी खुद जनरेट कर पाए। सो दिस वाज डन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसी तरीके से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया अर्बन लोकल बॉडीज को। अर्बन लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जो कि हमारी सिटीज में हमें पाई जाती हैं। सो बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शेड्यूल 12th वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन 74th। सो शेड्यूल 12 के अंदर जैसे कि पंचायत के बारे में हमने कहा था, अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमिटीज़ के पास जो जो पावर्स होंगी, जिन जिन सब्जेक्ट्स पे वो कानून बना सकती हैं और जिन जिन सब्जेक्ट से वो पैसे रेज कर सकती हैं, वो सारे लिखे गए 12th शेड्यूल के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जब किसी बॉडी को दे दिया जाता है तो उससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उसके पास एक अलग सैंक्टिटी आ जाती है एंड वो उस अथॉरिटी को अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करा जा सकता है, एंड एक मैंडेट बन जाता है फिर जुडिशरी के अंदर ऊपर भी कि उस प्रोसेस को वह इम्प्लीमेंट करवाए, वो देखे कि वह प्रोसेस सही तरीके से इम्प्लीमेंट होए। सो this was done by 74th Constitutional Amendment Act. Urban local bodies were granted constitutional status. 12th schedule was added to the constitution. Then we have 77th Constitutional Amendment Act. It provided for reservation and promotion in government jobs for scheduled caste and scheduled tribes. It provided for the provision for reservation and promotion. Basically आर्टिकल 16 के अंदर गवर्नमेंट प्रमोशन ग्रांट, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को एक रिजर्वेशन दे सकती है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। हाउएवर इंदिरा साहनी की जजमेंट में क्या हुआ, इसके साथ साथ गवर्नमेंट अब तक, जब इंदिरा साहनी की जजमेंट आने से पहले व्हेन प्रमोशंस वर ड्यू, सपोजिटली एक डिपार्टमेंट में 4 प्रमोशंस की पोस्ट्स खाली हुई, उसमें भी रिजर्वेशन दी जाती थी। सो इनिशियल जॉब के टाइम पे तो आपको रिजर्वेशन मिलती ही थी, आपको फिर प्रमोशन के टाइम पे भी रिजर्वेशन मिलेगी। अगर 4 पोस्ट आई तो कुछ जाएंगी जनरल को, कुछ जाएगी रिजर्व क्लास के इंडिविजुअल्स को। सो इंदिरा साहनी की जजमेंट में ये कह दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट कि आप रिजर्वेशन में प्रमोशन नहीं दे सकते, दिस वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस चीज़ को रेमेडी करने के लिए और इसको बाईपास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन 77th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही प्रोविजन बना दिया गया, एक इनेबलिंग प्रोविजन बना दिया गया कि अगर सरकार चाहे तो वह रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, 86th Constitutional Amendment Act. It made elementary education a fundamental right, added Article 21A of to fundamental rights. हमारे fundamental rights के लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि Article 21A provides for elementary education to be provided to all the children between the age of 6 to 14. Basically, and इस चीज़ को implement करने के लिए Right to Education Act भी लाया गया था। So, बेसिकली 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी सरकार की है,
एंड सरकार को ये निश्चित करना होगा इनके फंडामेंटल राइट्स के लिए ये हिसाब से कि सभी बच्चों को वो एजुकेशन मिले, एंड यदि किसी बच्चे को वो एजुकेशन नहीं मिल रही तो वह सरकार के अगेंस्ट केस भी करके ये अपना हक उनसे ले सकता है। इससे पहले दिस प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट था अंडर आर्टिकल 45। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक ऑब्जेक्टिव रखा था कि हम चाहेंगे कि स्टेट ऐसा काम करे कि जिस तरीके से इंश्योर किया जाए कि 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। सो ये एक स्टेप फॉरवर्ड ही हुआ कि हमने जो एक ऑब्जेक्टिव था उसको हमने अब राइट बना दिया। अब 45 अमेंडमेंट 45 आर्टिकल 45 को भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसके अंदर नया ऑब्जेक्टिव डाल दिया, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्टिव तो हमने अब राइट बना दिया। नया ऑब्जेक्टिव क्या डाला? नया ऑब्जेक्टिव ये डाला दैट नाउ द स्टेट shall try to ensure early childhood care and education to all the children below 6 years of age। अब 6 से 14 वालों को तो हमने राइट टू एजुकेशन दे दिया, अब उनसे नीचे वालों का क्या? अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि उन बच्चों को भी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दी जाए, जो प्री स्कूल की एजुकेशन होती है बेसिकली। Along with this, it amended the fundamental duties that is enshrined in part 4A of the constitution, and उसके अंदर एक नई ड्यूटी को ऐड किया गया। आइए देखते हैं ये ड्यूटी क्या है। It reads, it shall be the duty of every citizen of India who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years। So इसके थ्रू पेरेंट्स और गार्जियंस पे भी एक ड्यूटी लगाई गई कि अब आपको भी इंश्योर करना है, आपको भी कोशिश करनी है that your children who are between the age of 6 to 14 years are provided with opportunities to get an education. Then we have the 91st Constitutional Amendment Act of 2003। अब होता क्या था कि जब भी सरकारें बनती थी एंड एक पार्टी गवर्नमेंट बना लेती थी तो सभी मेंबर्स को, सभी एमएलएज या एमपीज को प्लीज करने के लिए ढेर सारे मिनिस्टर्स बना दिए जाते थे। जब कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर बन जाता है तो उसे स्पेशल पर्क्स तो मिलते ही मिलते हैं एंड उसकी एक प्रेस्टीज भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सभी एमएलएज की या एमपीज की इच्छा होती है कि वह मिनिस्टर बन जाए। इनको सभी को मिनिस्टर बनाते बनाते तो ये एक इम्पैक्ट पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन पे, बिकॉज जितने ज़्यादा मिनिस्टर होंगे उतने ज़्यादा आप डिपार्टमेंट्स बनाएंगे एंड उतनी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाती है। सेकंड, एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। सो इस चीज़ को रोकने के लिए बाय मीन्स ऑफ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लिमिट लगा दी गई कि आप कितने मिनिस्टर बना सकते हैं। सो ये लिमिट रखी गई 15%। सो पार्लियामेंट के केस में टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा जो कि आज की डेट में 550 है, उसकी 15% की जो स्ट्रेंथ होएगी, 550 का 15% निकाल लीजिए, सिर्फ उतने ही मेंबर हो सकते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। एंड द सेम गोज विद रिस्पेक्ट टू स्टेट असेंबलीज। स्टेट असेंबलीज के अंदर भी टोटल जितने उनके मेंबर्स हैं उसके 15% मेंबर्स जितनी ही बड़ी हो सकती है स्टेट की कैबिनेट भी। देन we have the 92nd Constitutional Amendment Act of 2003। 92nd Constitutional Amendment Act ने 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। 8th शेड्यूल बात करता है वो सभी लैंग्वेजेस की जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। सो इट एडेड बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली टू 8th शेड्यूल एंड दीज वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड with this the total number of recognized languages in the 8th schedule by the constitution reached 22। 97th Constitutional Amendment Act of 2001। It gave constitutional status to cooperative societies। हमारे आर्टिकल 19 के अंदर जहां हमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस हैं, वहां पे अब राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी डाल दिया गया। एंड अगेन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसके रिस्पेक्ट में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया गया कि स्टेट अब प्रमोट करे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को।
बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं, अपने रिसोर्सेज खुद पूल करते हैं एंड किसी एक उद्देश्य की तरफ काम करते हैं। काफ़ी सारे विलेजेस के अंदर एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं। हमारी ये जो वेरका है, अमूल है, ये बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है मिल्क वेंडर्स की। इसके थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने बेसिकली काफ़ी सारे लोगों को फाइनेंशियली वेल ऑफ किया, पॉवर्टी से भी बाहर निकाला। सो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया। ये इंपॉर्टेंट आज के टाइम में इसलिए है ये वाली अमेंडमेंट बिकॉज रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने के लिए अब हमारे सेंटर में अलग से मिनिस्ट्री है। देन अब हम कुछ बात करते हैं रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। ऑल्दो अब जो भी रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, वैसे तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अपने हिसाब में ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में भी जान लेना चाहिए। सो फर्स्ट इज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ने एक नया सिस्टम प्रपोज किया था जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करी जा सकती है। एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है बाय द सिस्टम ऑफ कोलेजियम। कोलेजियम में कौन कौन मेंबर होते हैं? कोलेजियम को हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड उसके मेंबर्स होते हैं अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली ये सभी जजेस मिलके यूनानिमसली एक डिसीजन देते हैं विद रिस्पेक्ट टू हु विल बी द इंडिविजुअल जिसको भी ये एलिवेट करेंगे हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। एंड ये रिकमेंडेशन भेजी जाती है प्रेसिडेंट को एंड प्रेसिडेंट को ये रिकमेंडेशन मैंडेटरीली माननी पड़ती है। बाय 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एनजेएससी का सिस्टम लाने की कोशिश हुई जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव भी इस प्रोसेस का पार्ट बन जाए, लेकिन इस अमेंडमेंट को अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ये कह के दैट इट इंटरफेयर्स विद द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देन वी हैव द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। सो इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो काफ़ी पोरस है। ऐसा इसलिए है सपोजिटली क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्राइबल स्टेट्स होती थी, एज एन जो ईस्ट के अंदर, इंडिया के ईस्ट पार्ट के अंदर देयर वर सर्टेन ट्राइबल प्रिंसली स्टेट्स विच हैड एसीडेड टू इंडिया। एक स्टेट थी कूच बिहार की, ये आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब कूच बिहार क्योंकि एक ट्राइबल प्रिंसली स्टेट्स थी तो इसकी जो मेन टेरिटरी थी उसके अलावा भी इसके पास कई और टेरिटरीज थी जो कि मेन टेरिटरी के साथ लगती नहीं थी। सो जब रेडिक्लिफ लाइन खींची गई जिसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच के अंदर बाउंड्री बनाई, सो कुछ एक ये जो टेरिटरीज थी ये बांग्लादेश में चली गई। आज की डेट में बांग्लादेश, उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान। एंड इसी तरीके से जो बांग्लादेश के कुछ एक टेरिटरीज थी वो इंडिया की टेरिटरी में आ गई। इन टेरिटरीज को कहा जाता है इनक्लेव्स। सो लगभग इंडिया के 101 इनक्लेव्स थे बांग्लादेश में और बांग्लादेश के 51 इनक्लेव्स थे इंडिया में। सो इसके कारण काफ़ी सारे प्रोसीजरल एंड लोगों के सिटीजनशिप जो यहाँ पे रह रहे थे वो सारे डिस्प्यूट्स चलते रहते थे। इन ऑर्डर टू पुट एन एंड टू दिस इट वाज डिसाइडेड कि इंडिया के ये जो 101 इनक्लेव्स बांग्लादेश में है ये तो बांग्लादेश रख ले और ये जो 51 इनक्लेव्स बांग्लादेश के इंडिया के अंदर हैं ये इंडिया रख लेता है। लेकिन इसके अंदर इंडिया क्योंकि ज़्यादा इनक्लेव्स दे रहा था, इंडिया की कुछ एक टेरिटरी ज़्यादा बांग्लादेश को सेसीड करने के लिए तैयार हुआ। जैसे कि हमने आपको बताया था बेरूबारी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको टेरिटरी सेसीड करनी है, टेरिटरी किसी और देश को देनी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होगी। उसी रिस्पेक्ट के अंदर इस एग्रीमेंट को इंडिया एंड बांग्लादेश जो बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट एग्रीमेंट है उसको लागू करने के लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 को लाया गया। देन वी हैव द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया है। सो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। जीएसटी एक यूनिफॉर्म लॉ है जो कि पूरे देश में हर एक स्टेट में एक तरीके से अप्लाई होगा। इससे पहले स्टेट के पास अलग पावर्स थी अपने अलग अलग टैक्सेस लगाने के लिए। इसके थ्रू क्या होता था कि एक डिस्टॉर्शन बन जाती थी, किसी स्टेट में कोई आइटम महंगी है, किसी स्टेट में सस्ती है। सो एक सिंगल मार्केट नहीं क्रिएट हो पा रही थी इंडिया की इकोनॉमी में, एक सिंगल मार्केट नहीं क्रिएट हो पा रही थी। एक सिंगल मार्केट क्रिएट करने के लिए जीएसटी को लाया गया एंड
जीएसटी के थ्रू अब पूरे देश में हर आइटम पे एक ही तरीके का टैक्स लगता है। देन वी हैव 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। इससे पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन स्टेटस है एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को है। अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। ये कमीशन बेसिकली ये देखता है कि सभी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को सही ढंग से ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, क्या उनके कोई स्टेट्स वायलेट या उनके कोई राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे, यानी कि यदि हो रहे हैं तो क्या उनको ठीक तरीके से देखा जा रहा है, क्या उनको ठीक तरीके से प्रिवेंट किया जा रहा है इस वायलेशन को। देन वी हैव द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 15-16 के अंदर प्रोविजन बनाया EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिजर्वेशन देने के लिए एक इनेबलिंग प्रोविजन बना दिया गया, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी दे सकती है। पहले सिर्फ सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिजर्वेशन ग्रांट करी जा सकती थी। अब वह इंडिविजुअल जो चाहे उच्च कास्ट से, सो कॉल्ड उच्च कास्ट से बिलोंग करते हुए हों या अर्बन एरिया में रह रहे हों, हाउएवर यदि उनकी इनकम काफ़ी कम है तो अब उन्हें भी रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जा सकता है। And lastly, we have 104 Constitutional Amendment Act. So, at the time of independence, it was decided कि legislatures के अंदर and parliament के अंदर कुछ एक seats scheduled caste and scheduled tribe के members के लिए reserve करी जाएं ताकि उन्हें भी power का कुछ हिस्सा मिल सके। Initially, it was decided कि सिर्फ 10 साल के लिए हम ये reservation रखेंगे, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली इस रिजर्वेशन को इंक्रीज करा जाता रहा। जब जब वो 10 साल खत्म होने वाले होते हैं तो एक लॉ ला के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उन 10 साल को आगे बढ़ा देती है। सो अकॉर्डिंगली 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने भी यही किया। उन्होंने इस एक्ट ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन थी वो 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दी पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स ने। एक और काम इसने किया, इससे पहले रिजर्वेशन दी जाती थी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर एमएलए एंड एमपी की सीट्स में एंग्लो इंडियंस को भी। एंग्लो इंडियंस कौन है? एंग्लो इंडियंस है डेसिडेंट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। बेसिकली जो ब्रिटिशर्स ने किसी इंडियन के साथ शादी कर ली एंड फिर उनके आगे ऑफस्प्रिंग्स हुए, उनके आगे बच्चे हुए, सो उन लोगों को हम कहते हैं एंग्लो इंडियंस। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज डिसाइडेड कि एंग्लो इंडियंस क्योंकि उस टाइम पे बहुत थे, उनकी भी कोई रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट के अंदर। हाउएवर by the time of 104th Constitutional Amendment Act of which was passed recently, it was decided कि अब एंग्लो इंडियंस की इतनी ज़्यादा वो नहीं रही है population, and therefore it is not required to give them reservation, and therefore the seats reserved for Anglo Indians were taken away by 104th Constitutional Amendment Act. With this, we are done with the important amendment acts of Constitution. So, should you have any questions with respect to this lecture, feel free to put your questions in the comment box. I would be more than happy to reply to them. Thank you and have a nice day.